पिता परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਦਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ। ਆਮੀਨ। थैंक यू सिस्टर अंजू प्रार्थना के लिए। और अभी हम लोग का टाइम है वचन सुनने का, और सिस्टर रीनू को मैं स्वागत करते हैं। सिस्टर Am I audible? के लिए ब्लेसी लॉइस। Am I audible? Yes, yes. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। We bring greetings from Jamtara. हम आपको जमतारा से बहुत सारा प्यार देते हैं। Jamtara is in a state called Jharkhand. जमतारा झारखंड में पड़ता है। Okay, my name is Renu Santosh Thomas. और मेरा नाम रेनू संतोष थॉमस है। We are basically from Kerala. हम वैसे केरला से हैं। But for the past 19 years, I'm here in Jamtara. पर कुछ सालों से हम जमतारा में हैं। I'm helping my husband in different activities in different ministries. और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है वो कुछ एक्टिविटीज में करते हैं जो मिनिस्ट्री में है। मेरा हस्बैंड एक इवेंजलिस्ट है। मेरे हस्बैंड जो है वो इवेंजलिस्ट है, सेवा करते हैं। Yeah, his name is Santosh Thomas. और उनका नाम संतोष थॉमस है। And I like to share my testimony for first few minutes and the ministry over here. तो सबसे पहले वो अपनी टेस्टिमनी देंगे। Yeah, I'm born in Kerala. मेरा जन्म केरला में हुआ है। But I was brought up in Muscat. It's a Gulf country. पर हमारा पालन पोषण जो है वो मस्कट कंट्री में हुआ है, जो विदेश में है। My schooling and college was in Muscat with my parents. और उनकी जो कॉलेज की पढ़ाई और स्कूल की जो पढ़ाई है वो सब मस्कट में हुई है। And I was like, as you like, you know, the normal young girls, I was also a young girl with lots of aspirations and different dreams. जैसे ही एक साधारण लड़कियां होती है, नौजवान लड़कियां, वैसे ही मैं भी थी, पर मैं बहुत सारे सपनों के साथ थी। मेरे बहुत सारे सपने थे। And but along with that, I used to study the Word of God since my childhood. पर हमने अब्रॉड से, विदेश की धरती से बहुत सारी स्टडीज की है। And I used to pray a lot. और मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करती थी। I was involved in Sunday school and the sisters meeting activities. और मैं जो संडे स्कूल की जो मीटिंग होती थी, सिस्टर्स मीटिंग की जो मीटिंग होती थी, उनमें मैं शामिल होती थी। But I never wanted to marry an evangelist. पर मैं कभी भी एक सेवक के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। When I finished my class 12, जब मैंने अपनी कक्षा 12वीं कंप्लीट कर ली, my mother told me to start praying for my life partner. तब मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि आप अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करिए। She also told me, she also asked me, what if you get a proposal of an evangelist? Sorry? What if you get a proposal from an evangelist? उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें कोई प्रपोजल या कुछ इवेंजलिस्ट के द्वारा कुछ तुम्हारे लिए पत्र आए तो तुम क्या करोगे? So my answer was, तो मेरा जवाब यह था, who will get married to an evangelist? I don't want an evangelist. तो एक सेवक के साथ कौन शादी करेगा? मैं सेवक के साथ शादी नहीं करना चाहती। Then my mother warned me. पर मेरी जो माताजी थे वो चाहते थे कि मैं एक सेवक के साथ शादी करूं। And she warned me, she told me that don't say like that. We do not know what God has kept for you.
तो मेरी माताजी ने मुझे समझाया और कहा कि आपको मना नहीं करना चाहिए। हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या रखा है, हमें परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना है। Another 3 years went. और जब 3 साल बीत गए, I got my attitude or my the way I thought about an evangelist started changing, because I thought about evangelist in a different way, but all that thinking changed me. पर मेरे जो ख्याल थे एक सेवक के प्रति वो सब बदलने शुरू हो गए। And as I finished my graduation, I got married to an evangelist. और जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई तो मैंने एक सेवक के साथ शादी की। So with the verse we have, whatever the Lord has planned for us, eye has not seen, ear has not heard, this is act in my life. तो मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर ये परमेश्वर की इच्छा से मेरे जीवन में हुआ है। Yeah, so our plans are not God's plan. तो हमारी जो प्लान्स होते हैं वो परमेश्वर के प्लान्स नहीं होते हैं। We think so many things, we plan so many things, but God has a different purpose from our life. हम बहुत कुछ सोचते हैं, हमारे बहुत सारे विचार होते हैं, पर परमेश्वर के विचार हमारे लिए और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में बहुत अलग होता है। We must submit ourselves to Him, submit according to His will. हमें परमेश्वर को उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। Yeah, so past 19 years, I am helping my husband in different ministries over here. तो हम कुछ 19 साल से हम अपने जो हमारे जीवन साथी हैं उनके साथ हम सेवा में हाथ बटा रहे हैं। So this 19 years, I have just one statement to say. इस 19 सालों में मेरे पास सिर्फ एक ही बात है जो मैं कहना चाहती हूँ। Ministry or being in the Lord's work is the best profession a person can have. अगर हम परमेश्वर के कार्य में शामिल होते हैं या हम मिनिस्ट्री करते हैं तो वो एक सबसे उत्तम कार्य है जिसमें हम शामिल होते हैं। God has blessed us with 3 children. और परमेश्वर ने हमें 3 बच्चों के द्वारा आशीष दी है। 2 sons and a daughter. और मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटी है। Elder son is in 12th. और जो मेरा बड़ा बेटा है वो 12वीं में है। Second son is in 9th. और जो मेरा दूसरा बेटा है वो 9th में है। Daughter is in class 6. जो मेरी बेटी है वो 6ठी कक्षा में है। This 19 years were not a bed of roses, or it was not an easy journey for me. तो जो मेरे 19 साल थे वो एक गुलाब से भरे हुए पलंग की तरह नहीं थे, मतलब कि बहुत आसान नहीं थे, पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, मुश्किल थे। As you all know, a girl brought up abroad, coming to India in a remote village, it's very difficult to adjust to the situations over here. जैसे कि आपको पता है कि मैं विदेश में पली बड़ी हूँ और विदेश से इंडिया के एक छोटे से गांव में बसना एक बहुत बड़ी एडजस्टमेंट थी मेरे लिए। Jamtara is a village. तो जमतारा जो है वो एक गांव है। When I came 19 years back, जब मैं पिछले 19 साल में यहाँ आई, we never had electricity. तो हमारे पास बिजली नहीं होती थी। Even though if we had electricity, it was just like light of a firefly. अगर हमारी बिजली भी होती तो जैसे एक आग जलती होती थी, थोड़ी सी वैसी होती थी। And if current goes and it comes back after 10 days. और अगर बिजली चली जाती थी तो 10 दिनों बाद आती थी। And if I had to make a phone call to my parents, because my parents were abroad, I had to go to another city to make a phone call. और अगर मुझे अपने माता पिता से बात करनी होती थी तो मुझे दूसरी जगह में जाके दूसरे शहर में जाके बात करनी पड़ती थी। We never had good hospital facilities, and we're still not having any hospital facility, good hospital facility here. और हमारे गांव में एक हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज है वो इतनी अच्छी नहीं है, और अभी भी हॉस्पिटल्स में इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। But my Lord was good to me. मेरा परमेश्वर मेरे लिए बहुत अच्छे थे। Till today he was faithful to me. वो मेरे लिए विश्वास योग्य थे। And
from year 2003, 2003 से we are having ministry among the sisters over here. तो हमारे यहाँ पे बहनों के बीच में भी संगति होती है। From 2003, we used to have sisters camp every year for a week. तो 2003 से हमारे यहाँ पे सिस्टर्स कैंप होता था और हर एक साल में होता था। And we had sisters from different places of West Bengal, Bihar and Jharkhand. हमारे बीच में जो सिस्टर शामिल होते थे वो अलग अलग शहरों से होते थे, जैसे कि झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। And after 1 week camp, और एक सप्ताह के कैंप के बाद sisters never wanted to go back home. और बहनें अपने घर नहीं जाना चाहती थी, because they're at home they don't get love and care. क्योंकि बहनों को घर में प्यार और केयर नहीं मिलती थी। And fathers may be drunkards. और उनके जो पिताजी होते थे वो शराबी होते थे। They don't have a spiritual atmosphere in their homes. और उनके घरों में आत्मिक माहौल नहीं होता था। They wanted to study the word of God more. और वो बहनें चाहती थी कि हम परमेश्वर के वचन को और सीखें। So with so much of prayer, तो बहुत सारी प्रार्थनाओं के साथ and consultation with different sisters and men of God, और बहुत सारे परमेश्वर के लोगों से बातचीत कर in 2014 we started a small training center for sisters of our nearby assemblies. तो हमने यहाँ पर 2014 में सिस्टर्स ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। Yeah, so from 2014 every year for 6 months we have a training center, we have a training program for sisters. हमारे कुछ 6 सालों से यहाँ पर सिस्टर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। Can you allow me to share some photos? Yeah, sure. Wait for some time. I would like to show some pictures of our training center just for a few minutes. You can share now? Yes. Yeah, this is our last batch. In 2020 we had, and 2020-21 we had this batch, the 7th batch. ये हमारा एक आखिरी बैच है, ये 2020 से 2021 तक का है। Yeah, we had different sisters from West Bengal. हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगहों से बहनें थी, जैसे कि वेस्ट बंगाल से, बिहार, Jharkhand and Assam. झारखंड और असम से। And last year we had from Maharashtra also. और पिछले साल ही हमारे को महाराष्ट्र से भी बहुत सारी बहनों ने इसमें सम्मिलित हुए हैं। This is another batch we had. It's their graduation ceremony. तो ये भी एक और बैच है जिनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है। This is the last batch. We have few sisters here helping us in taking classes and all. तो ये आखिरी बैच है और इसमें बहुत सारी बहनें हैं जो कि क्लासेस वगैरह लेते हैं। This is our first batch which we started in 2014. तो ये हमारा फर्स्ट बैच है जो हमने 2014 में शुरू किया था। Till now we had 7 batches. तो अभी तक हमारे पास कुल 7 बैच हैं। We teach them the word of God. हम उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। The program is only for 6 months. और जो ये सारा प्रोग्राम है ये पूरे 6 साल का होता है। सॉरी 6 months. Yeah. Along with Bible training, we give them some vocational training. तो हम उन्हें बाइबल ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ वोकेशन ट्रेनिंग भी देते हैं। We teach them tailoring. हम उन्हें सिलाई करना सिखाते हैं। Now this is some tailoring classes going on outside. तो ये कुछ सिलाई की कक्षाएं हो रही थी बाहर।
Yeah, this is all our different batches we had. This is a sisters camp we are having. तो ये एक सिस्टर्स कैंप है. These sisters are from poor villages, poor backgrounds. तो ये जो जितनी भी सिस्टर्स हैं ये सब बहुत ही ज्यादा गरीब बैकग्राउंड से हैं. This is another sisters camp. तो ये दूसरा सिस्टर्स कैंप है. We also teach them some handworks, handicraft also. हम उन्हें कुछ हैंडीक्राफ्ट्स भी सिखाते हैं, आर्ट से रिलेटेड जो काम. Yeah, this is from the waste cloth. They are making some door mats. तो ये कुछ अनचाहे जो कपड़े होते हैं उनसे हम, जो खराब हो गए हैं कपड़े, उनसे हम डोर मतलब मैट बना रहे हैं घर के लिए. Yeah, this is their classroom. We have it's a separate building. It's in another campus. This is their classroom. और हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके से एक बिल्डिंग बनाई हुई है जिसमें हम क्लासेस लेते हैं. These are all our different batches. This is bag making. One sister from Nepal, she came here to study and she knew how to make bags. What is this? Bag making. ओके, सो ये बैग बनाने के लिए है. तो हमारे यहाँ से एक नेपाल से एक बहन आए थे, उन्हें ये आता था तो उन्होंने हमें सिखाया है कि किस तरह से बैग बनाते हैं. Yeah, this is a tailoring classes. तो ये सिलाई की कक्षा है. This is also another bag making with hand. तो हम ये भी एक बैग मेकिंग है, तो ये हाथ से होता है. Yeah, so these are some pictures. I just wanted to share and tell you about the ministry over here. तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताना चाहती थी. Continue to pray for our sisters training center. तो आप हमारे बहनों की सभा के लिए आप प्रार्थना करें. If God willing, if everything is okay, this year in September we want to start the new batch. तो अगर परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ सही रहा तो हम इस सितंबर में भी सिस्टर्स मीटिंग को शुरू करना चाहते हैं. Please pray for me. तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें. Every batch we take 20 to 25 sisters. और हम हर एक बैच में 20 से 25 बहनें लेते हैं. It's not easy to look after girls. और ये बहुत आसान नहीं है कि हम लड़कियों को देखें. It's easy to look after our daughter at home. आसान है कि हम अपने घर की बेटियों को देखें. If they don't listen to us, we can scold them or give them one beating also. तो अगर वो हमारी जो घर की बेटियां अगर वो ना सुने तो हम उन्हें समझा सकते हैं, हम उनको मार सकते हैं, हम उनको ताड़ भी सकते हैं. But we have different girls from different family, different atmosphere coming together under one roof. हमारे पास अलग अलग जगहों से बहनें आती हैं, अलग अलग वातावरण उनके सामने होता है, अलग अलग शिक्षा होती है. Their temperament is different. तो उनका जो तरीका है, विचार है, तो वो सब बहुत अलग है. Their spiritual upbringing is different. उनके आत्मिकता भी अलग है. Yeah, their thinking is different. उनके विचार अलग हैं. I cannot scold them. मैं उन्हें बोल नहीं सकती कुछ. They don't have a disciplined life in their homes. उनकी एक अनुशासन की जिंदगी नहीं है. They don't study the word of God, or they don't have a spiritual atmosphere at home. तो वो जो परमेश्वर का वचन है उन्हें भी नहीं पढ़ सकती हैं क्योंकि उनके घर में एक आत्मिक वातावरण नहीं है. So once they come to our institute to train them, to discipline them, make them to study, read the word of God, it's very challenging for us. तो जब वो हमारे इंस्टीट्यूट में आती हैं तो उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाना और उसी अनुशासन में बनाए रखना और भी सारी चीजें सिखानी, तो वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्वक होता है. So please pray for us and the ministry over here. तो इसलिए आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए और हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए भी आप प्रार्थना करें. I thank dear sisters, whoever is responsible of this meeting, for inviting me and giving me this opportunity to share from the word of God.
मैं उन बहन का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस मीटिंग को आयोजित किया है और मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया है कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। I thank Sister Mini for inviting me. तो इसलिए मैं बहन मिनी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया है। I have seen her only by picture. I have seen her. मैंने आपकी सिर्फ 5 तस्वीरें देखी हैं। But I know Brother Jagdev's brother, Subhash Chandra, Evangelist Subhash Chandra, and Sister Saundarya. पर मैं ब्रदर जगदेव के भाई को जानती हूँ जो कि इवेंजलिस्ट सुभाष चंद्र है और उनकी पत्नी जो है सिस्टर सौंदर्या, उन्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। Yeah, my husband studied with them. क्योंकि मेरे जो पति हैं उन्होंने उनके साथ पढ़ाई की है। They are good friends. और वो बहुत अच्छे मित्र हैं। And after our marriage, we went to Shimla to visit them. और हमने हमारी शादी के बाद हम उनको मिलने गए थे शिमला में। And Brother Subhash had been to our campus. हमारे कैंपस में जो ब्रदर सुभाष है वो भी आए थे। Yeah, so if along with our sisters training, we also have other ministries. और हमारे सिस्टर्स मीटिंग के साथ साथ हमारे यहाँ पे और भी मिनिस्ट्री होती है। We have a Bible school for boys, for brothers. हमारे पास बाइबल स्कूल भी है जो लड़कों के लिए है और भाइयों के लिए भी है। It started some 35 years ago. और ये 35 साल पहले शुरू हुआ था। And we have a secular school, ICSE school from nursery to class 10. और हम एक स्कूल भी चलाते हैं जो कि नर्सरी से लेके 10 तक है, जो कि ICSE है। My husband is looking after all these ministries, so continue to pray for him. और मेरे जो पति हैं वो इन सब मिनिस्ट्रीज में शामिल हैं और आप लोग भी उन्हें प्रार्थनाओं में याद रखें। We have many brothers here helping us in different ministries. और हमारे यहाँ पे और भी सब भाई हैं जो हमारी सहायता करते हैं अलग-अलग मिनिस्ट्रीज में। Okay, let's turn into the Word of God. तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। My topic is spiritual maturity. तो मेरा जो विषय है वो है आत्मिक परिपक्वता। Now we all have children at home. तो हमारे घर में हम सभी के घरों में बच्चे जरूर होंगे। And once children starts growing, from the day of their birth, from in the fetus, it's when they are in the womb itself as a fetus, they start growing. तो जैसे ही बच्चे जब माँ की कोख में होते हैं तब से ही बच्चे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। And once they are born, we want them to grow every day. जैसे ही वो बढ़ने लग जाते हैं एक बार हम ये सोचते हैं कि वो हर एक दिन बढ़े। And once they come to certain age, we have different expectations from them. और जैसे ही वो एक उम्र में आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर उम्र में आ जाते हैं, तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं उनसे। And we want them to be matured enough once they become big, like in the teenage and all, we want them to be matured enough in different ways. और जैसे ही वो टीनेज में हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो एक तरीके से उनमें मैच्योरिटी, एक परिपक्वता आ जाए। We never expect our children to always drink milk and live. We want them to have solid food and heavy food. तो हम हमेशा ये नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो दूध पिए और जी, हम चाहते हैं कि वो बहुत पौष्टिक खाना खाएं। That's the same with our spiritual father, our heavenly father. और इसी तरह से हमारी जो आत्मिक जो हमारे पिता हैं उनकी भी ये सेम इच्छा है। Our heavenly father expects the same thing from us. और जो हमारे स्वर्गीय पिता है वो भी हमसे यही चीज की उम्मीद रखते हैं। He wants us to grow every day. वो यही चाहते हैं कि हम हर एक दिन में बढ़े and be matured day by day. और हम अपने आप को परिपक्व कर सकें दिन प्रतिदिन। Now, spiritual growth is not a one-day process. और जो आत्मिक उन्नति है वो एक दिन का काम नहीं है। It won't stop. ये कभी रुकता नहीं है। It's everyday process. ये हमेशा ही चलता रहता है। Till our last breath, we should grow spiritually. हमारे आखिरी सांस तक ये जो प्रोसेस है ये चलता ही रहता है। Spiritual maturity also, every day we should strive to become mature.
तो जो आत्मिक परिपक्वता है, हमें इसके लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको दृढ़ कर सकें। Now we will look into certain points that how a person can be spiritually mature. तो हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि एक व्यक्ति कैसे आत्मिक परिपक्व हो सकता है। Let's turn to book of James, epistle of James. चलिए हम याकूब की पुस्तक में चलेंगे। The book epistle of James, we have so many examples, so many illustrations given here. उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दिए हैं, हम उनकी ओर देखेंगे। Yeah. So now chapter 1 to 5, we will take out some verses and find out how a person can become mature, spiritually mature. हम अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम देखेंगे कि कैसे हम आत्मिक रीति से परिपक्व हो सकते हैं। Now let's read chapter 1 verse 2. तो हम याकूब 1 के 2 से पढ़ेंगे। My brethren, count it all joy when you fall into various trials. भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। Yeah. So suffering, the first point is suffering. तो सबसे पहली जो चीज है वो है परीक्षाएं। Now suffering makes a person mature. जो परीक्षाएं हैं वो एक व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। When you get time, you read verse 1 to 15 of chapter 1. जब आपको वक्त मिले तो आप अध्याय 1 अध्याय से उसके 7 से लेके 15 तक जरूर पढ़ें। No, verse 1 to 15. 1 से लेके 15 तक जरूर पढ़ें। Yeah, we all have different types of problems and sufferings in our lives. हमारे जीवन में अलग अलग तरह की समस्या और परीक्षाएं होती हैं। My problem may not be your problem. मेरी जो समस्या है वो आपकी समस्या नहीं हो सकती। Yeah. So whenever God gives us a problem in our life, a suffering in our life, परमेश्वर का जो गिफ्ट होता है वो हमारे जीवन में हमें एक समस्या से होकर या हमें एक परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। it is to purify us. Suffering is to purify us. तो ये जो परीक्षाएं होती है ये हमें शुद्ध बनाने के लिए होती हैं। It is to Wait a minute. You are muted actually. You are muted. Okay. Okay. Sufferings, God give us sufferings to purify us. परमेश्वर जो हमें परीक्षाएं देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि हम अपने आप को शुद्ध बना सकें, To strengthen us ताकि हम अपने आप को मजबूत बना सकें and to make us a better person, a better Christian. तो और हमें एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए भी हमारी मदद करें। Let's see James chapter 2 verse 12. Sorry, chapter 1 verse 2 to 12. इसी के साथ हम याकूब 1 अध्याय के 2 से लेकर 12 तक देखेंगे। Yeah, in that we can find out why God is giving us problems or sufferings in our life. तो इसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें क्यों परीक्षाएं, क्यों समस्याएं देते हैं। So whenever we have any problem in our life, we should always think that God has a purpose behind it. जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें परमेश्वर की कोई उद्देश्य है। Now, whenever we have a problem, Satan also has a purpose. तो जब हमारे जीवन में कोई समस्या होती है तो इसके साथ जो शैतान होता है उसकी भी कुछ उद्देश्य होते हैं। Satan will try to make us more bitter. तो जो शैतान है वो हमें बहुत कड़वा बनाने की कोशिश करेगा। He will force us to blame God. God, why did you give me such problems? वो हमारे जीवन में ये कोशिश करेगा कि हम परमेश्वर को ही हमेशा ब्लेम दें। Yeah, so problems, sufferings, God is giving us to make us better. तो जो परमेश्वर हमें परीक्षाएं देते हैं, जो समस्याएं देते हैं, वो हमें एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए देते हैं। And Satan will try to make us a bitter person.
और जो शैतान है वो हमें एक कड़वा इंसान बनने के लिए हमारे जीवन में समस्या दे। So whenever we have problem, we must praise God for it. जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या हो, हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर As it's written in verse 2, count it joy when you fall into various trials. तो जैसे कि हम दूसरे अध्याय में एक अध्याय के दूसरे वचन में देखते हैं कि उसमें लिखा है कि आप हमेशा खुशी को ढूंढें। तो जब हम समस्या में पड़े, हमें भी एक खुशी को देखना है। Whenever can we pray, Lord, Lord, thank you for all the problems that we have in our lives. क्या हम कभी कहते हैं कि परमेश्वर आपका शुक्रिया कि आपने जो भी हमारे को समस्या दी है? It's very difficult for us. ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। Yeah. So we have to praise God whenever we have problems. तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए जब भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए। Same time we have to pray when we are going through problems. और उसी समय हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए जब हम इस समस्या से चलते हैं। And whatever problems we have to persevere it. We have to struggle hard to come out of it. और अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है तो हमें उससे लड़ना चाहिए, हमें उसको जीतना चाहिए। Yeah, so to become a mature person, sometimes God gives sufferings and problems in our lives. तो हमें परिपक्व बनाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे प्रकार की हमारे जीवन में समस्याएं देते हैं। So don't get disappointed. तो आप निराश ना हो। God has a purpose. परमेश्वर का उसमें एक उद्देश्य है। The purpose is to purify us. और उनका उद्देश्य ये है कि वो हमें शुद्ध करें। Maybe there are some habits that we have to change in our life. और हमारी कुछ ऐसी आदतें होंगी जो शायद परमेश्वर बदलना चाहते हैं। Another purpose is to strengthen us and to make us a better person. और दूसरा उद्देश्य ये है कि वो हमें मजबूत बनाती है और हमें एक अच्छा विश्वासी बनाती है। So praise God for all the problems that we have. इसलिए आप परमेश्वर का शुक्रिया करिए कि आपके पास जो भी समस्या है। Okay, the next point is studying the Word of God. तो और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। Yeah, how to become spiritually mature? It's by studying the Word of God. हम अपने आप को आत्मिक रीति से परिपक्व कैसे बना सकते हैं? वो सिर्फ हम वचन का अध्ययन करके अपने आप को परिपक्व बना सकते हैं। Okay, you may say that in YouTube we have different messages. If we listen to the message of different God servants, also we can grow spiritually. तो आप लोगों में से कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास YouTube है और YouTube में से अगर हम अलग-अलग सेवकों के वचन सुन लें तो हम अपने आप को आत्मिक रीति से बढ़ा रहे हैं। That is one way, but the most important thing is that we have to read the Word of God. वो भी एक चीज है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम प्रभु के वचन से अध्ययन करें। It is our communication. God is speaking to us through His Word. मेरे और परमेश्वर के बीच की बातचीत है। Now we talk to God through prayer. हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना के साथ बात करते हैं। And God is speaking to us through His Word. और परमेश्वर अपने वचन के साथ हमसे बात करते हैं। So what God wants to tell us, He will reveal it through His Word. जो भी हमें परमेश्वर कहना चाहते हैं वो अपने वचन के साथ हमारे सामने प्रकट होगा। So we have to make it a point that every day we study God's Word. हमारे पास एक पॉइंट है कि हमें हर दिन वचन से अध्ययन करना है। Yeah. So we have to read God's Word and grow spiritually and become a mature person. तो इसलिए हमें रोज परमेश्वर के वचन से अध्ययन लेना है और तभी हम आत्मिक रीति से परिपक्व हो सकते हैं। Now, Word of God has so many things in it. और परमेश्वर के वचन में बहुत सारी चीजें होती हैं। It has certain warnings for us. और उसके बीच में हमारे लिए बहुत सारी चेतावनियां होती हैं। We have some guidance from the Word of God. और बहुत सारी अगुवाई होती है। We have rebuke. God is rebuking certain people there. और परमेश्वर कई बार हमें डांटते भी हैं। We have many instructions to follow in our life.
और हमारे पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी है। In different stages, when we are a child, और जब हम अलग अलग स्टेजेस से होते हैं और जब हम बच्चे होते हैं, then when we are in youth, और जब हम जवान होते हैं, then when we are in married stage, और जब हम शादीशुदा जीवन में होते हैं, different stages of life, we have instructions in the Word of God. और हमारे हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के वचन के अनुसार हमसे बात करते हैं। And when we read the Word of God, और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, we can examine ourselves. हम अपने आप को परख सकते हैं। Yeah, what are our drawbacks? What are our problems? We can examine ourselves. हम किस चीज में पीछे हैं, हमें क्या समस्या है, हम उसे जान सकते हैं। So read the Word of God every day. तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन हर दिन पढ़ना चाहिए। Now in James chapter 2 verse 14 to 26, इसी के साथ हम याकूब 2 अध्याय के 2 वचन से लेके 14 chapter 2 2 अध्याय verse 14 to 26, हम 14 वचन से लेके 26 वचन तक देखेंगे। we see about Christian service. और हम इसमें देखते हैं मसीही विश्वासियों के कार्य। Yeah, so Christian service makes us a mature person. तो जो हमारे मसीही कार्य होते हैं वो हमें परिपक्व बनाते हैं। Chapter 2 verse 26, दूसरा अध्याय उसकी 26 आयत में हम देखते हैं। we read that the last part. और हम उसका आखिरी पार्ट पढ़ते हैं। So faith without works is dead. वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। Yeah, so we say we have faith, we believe in God, we are the child of God, but if it is not shown in our works, it is dead. हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परंतु अगर हमारे कार्य ये स्पष्ट ना करें कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम मृतक हैं। So in what all ways we can, we must do service to others. और हम जिस भी कार्य में निपुण हैं, हमें उस कार्य के द्वारा परमेश्वर के कार्यों में सम्मिलित होना चाहिए। The Lord has blessed us in different ways. परमेश्वर ने हमें आशीष अलग अलग तरह से दी है। So in whatever way we can, we must do Christian service to others. We must try to help others. हम जिस भी तरीके से परमेश्वर के कार्य में सम्मिलित होते हैं, हमें उस कार्यों में सम्मिलित होना है। We must show our faith through our works. हमें अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा दिखाना है। So that is the third point, Christian service. तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है मसीही कार्य। So in any way, try to do some service to others so that through that we can grow spiritually mature. इसलिए आपको जब भी मौका मिले आप परमेश्वर के कार्य में जरूर सम्मिलित हो, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें और हम जीवन को परिपक्व बना सकें। The next point is sound speech or good talks. हमारा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अच्छी बातचीत। Yeah, sound speech makes a person spiritually mature. तो हमारी जो दृढ़ और अच्छी बातें हैं वो एक इंसान को आत्मिक परिपक्व बनाती हैं। That we can see in chapter 3. वो हम अध्याय 3 में देख सकते हैं। Chapter 3 verse 1 to 18, it says about how to tame our tongue. तो इसमें हम 1 से लेके 18 तक देख सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे एक दृढ़ बातचीत में इन्वॉल्व कर सकते हैं। Yeah, it tells us the importance of our tongue. तो ये हमें हमारी जो जीभ है उनकी महत्वपूर्णता और उनकी खासियत भी बताती है। We should be careful with our words. और इसलिए हम जो भी कहते हैं उसे हम सोच समझ कर कहें। People judge us, not only people, God will judge us by our words. तो जो लोग और परमेश्वर हमें हमारी जुबान से हमें परखते हैं। Our words can destroy a person. हमारे जो बातें हैं वो एक इंसान को मार भी सकती हैं। Especially ladies are good in gossiping.
और सबसे ज्यादा जो बहनें हैं वो बातचीत करने में बहुत ज्यादा तेज होती हैं। When two ladies meet, they will have something to talk about another person. तो जब दो बहनें मिलती हैं तो वो तीसरे इंसान के बारे में जरूर बात करेंगी। So we should be very careful with our tongue. तो इसलिए हमें अपनी जुबान से बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए। Try to control our tongue. हमें अपनी जुबान को नियंत्रण में रखने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। It can spoil others. वो दूसरों को सर्वनाश कर सकती है। It is like forest fire, it is, it can destroy like anything. वो एक जंगल की आग की तरह है जो सबको खत्म कर सकती है। We have many illustrations here in chapter 3 regarding tongue, how to tame our tongue. हमारे तीसरे अध्याय में बहुत कुछ बताया गया है जीभ के बारे में। But due to lack of time, I'm not going. You can read whenever you get time, chapter 3, verse 1 to 18. कम समय के कारण मैं वो पढ़ नहीं सकती, पर आपको जब भी वक्त मिले आप घर में जाके जरूर पढ़ें। Yeah. And now the next point to become spiritually matured is submitting ourselves to God. और उसी के साथ जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। That we can see in chapter 4. और वो हम चौथे अध्याय में देख सकते हैं। Chapter 4, verse 1 to 17. उसको हम 1 से लेकर 17 आयत तक देख सकते हैं। Especially we'll read verse 7. तो हम सबसे पहले 7 आयत पढ़ेंगे। Therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. इसमें लिखा है, इससे परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। So when we submit ourselves to God, तो जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, we can escape from 3 things. तो हम 3 चीजों से बच सकते हैं। The flesh, पहले हम अपने शरीर से, that we can see in chapter 4, verse 1 to 3. तो वो हम अध्याय 4 का 1 आयत से लेकर 3 आयत तक देख सकते हैं। Then verse 11, तो हम इसके साथ 11वीं आयत में भी देख सकते हैं 12, और 12वीं आयत में भी देख सकते हैं 16 and 17. और 16 और 17 आयत में भी हम देख सकते हैं। Yeah, we can escape from the flesh. हम अपने शरीर से बच सकते हैं। Then we can escape from the world. हम दुनिया से बच सकते हैं। Chapter 4, verse 4 and 5. और ये जो चीजें हैं ये हम अध्याय 4 के आयत 4 और 5 में देख सकते हैं। Then we can escape from the devil. और हम शैतान से भी बच सकते हैं। Chapter 4, verse 7. और इसका हम अध्याय 4 और 7 आयत को देख सकते हैं। So if we submit ourselves to God, we can escape from these 3 things. These are our enemies. तो अगर हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो हम इन 3 चीजों से बच सकते हैं। ये हमारे दुश्मन है। Yeah. So to escape, to defeat the world, the flesh and the devil, तो अगर हम दुनिया को और अपने शरीर को और शैतान को हराना चाहते हैं, we have to submit to God. तो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। We have to resist the devil. और हमें शैतान को हराना है। We have to draw near to God. Draw near to God. Come closer to God. तो और हमें परमेश्वर के निकट आना है। We have to cleanse and purify ourselves. हमें अपने आप को शुद्ध करना है। We have to be humble. हमें नम्र होना है। And we have to stop speaking evil. और हमें बुरी बातों से बचना है। So if you do all these things, we can defeat the world, the flesh and the devil. और अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हम दुनिया को, शरीर को और शैतान को हरा सकते हैं। Yeah. So submit ourselves to God. तो इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। So the next point is, whenever we have problem, as I said earlier, we should never give up. तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब भी हमारे इस जीवन में कोई समस्या है तो हमें हार नहीं माननी। Yeah, we get many examples from the Word of God. तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलती है परमेश्वर के वचन से। One good example or familiar example is life of Job. तो सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल है वो है आयूब की। Job had severe afflictions and problems.
आयुब के जीवन को हम देखते हैं तो उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं थी। He lost everything. उसने सब कुछ खो दिया। He lost his children. उसने अपने बच्चों को खो दिया। He lost everything. Except his wife, nobody was with him. और उसकी पत्नी के अलावा और कोई उसके साथ नहीं था। But he never spoke against God. पर उसने कभी भी परमेश्वर के खिलाफ कोई भी बात नहीं की। He underwent all the problems. He never gave up. और उस सभी समस्याओं से गिरा पड़ा था, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। He patiently suffered, underwent through all the problems. उसने धैर्य से हर एक समस्या से वो गुजरे हैं और उसका सामना किया है। So if we steadfastly undergo all the problems without giving up, we become spiritually matured. तो अगर हम दृढ़ता से हर एक समस्या का सामना करेंगे तो हम आत्मिक रीति से परिपक्व हो सकते हैं। And the last point is prayer. To become a mature person, we must have a prayerful life. तो इसी के साथ जो हमारा आखिरी पॉइंट है, जो छठा पॉइंट है, वो ये है कि प्रार्थना, हमें आत्मिक रीति से परिपक्व होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। That we can see in James chapter 5. तो वो हम याकूब के पुस्तक में अध्याय 5 में देख सकते हैं। Chapter 5 verse 12 to 18. और इसमें हम याकूब 5 अध्याय उसके 12वीं और 18वीं आयत में हम देख सकते हैं। Especially verse 16. और खासकर की आयत 16। 5 verse 16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. इसमें लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान दो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Now, chapter 5, we can see when we should pray. तो हम अध्याय 5 में ये देखते हैं कि हमें कब प्रार्थना करनी चाहिए। We should pray in all the situations of our life. तो हमें अपनी हर एक जिंदगी की परिस्थितियों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। We should pray when we have problems. हमें तब प्रार्थना करनी चाहिए जब हमारे जीवन में समस्या हो, when we have sickness, और जब हमें बीमारी हो, when we have good times, और जब हमारा एक अच्छे समय हो। all the situations of our life, pray to God, thank God for all the situations of our life. हमारे जीवन में जैसी मर्जी परिस्थितियां हो, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। Now, prayer has, now why we should pray, reasons for prayer. Why should we pray? हमारे पास कारण भी है, हमें क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। Now, prayer, as we read in verse 14 and 15, prayer can heal. तो जैसे कि हमने अध्याय आयत 14 में पढ़ा कि जो प्रार्थना है वो हमें हील कर सकती है, चंगाई, हमें चंगाई दे सकती है। Yeah, some impossible things can be made possible through prayers if it is God's will. नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हो सकती हैं अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो। We know that Elijah prayed for rain to Elijah's prayer stopped the rain and started rain. अब हम ये जानते हैं, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि एलिया की जो प्रार्थना थी उसकी वजह से जो बारिश थी वो रुक गई थी। Yeah, so impossible things can be made possible through prayer. तो नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हो सकती हैं। So through prayer we can become a mature person. तो हम प्रार्थना के साथ एक परिपक्व व्यक्ति बन सकते हैं। So we looked into certain few points how to become a spiritual mature person. तो हमने देखा है कि हम कैसे आत्मिक रीति से परिपक्व हो सकते हैं। Through our sufferings, through our problems. हमारी जो परिस्थितियां और हमारी जो समस्या है उसके साथ। By studying the word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर। Through our speech. हमारे बोलचाल के साथ। Then submitting ourselves to God. परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपकर। Then steadfastness, that is not giving up to the problems.
और दृढ़ता से अपनी मुश्किलों का सामना करना और कभी हार नहीं मानना। Then prayer. और आखिर में प्रार्थना। Yeah, so these are the few points. There are many points from book of James, but due to lack of time, I just shared few points. So these few points, if we follow in our life, we can grow every day spiritually, and we can become a matured person. तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स थे और इसके साथ हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं, पर कम समय होने के कारण मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ और इसी पॉइंट्स के द्वारा हम अपने आप को आत्मिक रीति से परिपक्व बना सकते हैं। May God help all of us together to accomplish or to do these points, these things in our daily life. Practice it in our daily life. तो परमेश्वर हम सबकी मदद करे कि हम इन सभी पॉइंट्स को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें और इनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। Once again, I thank all the dear sisters for giving me this opportunity. और इसी के साथ मैं एक और बार सारी बहनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। Yeah, happy to see you all. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबको देख पाई। I thank my dear translator also for translating for me very well. और मैं इसी के साथ अपनी ट्रांसलेटर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। I presume that you are Brother Jagdev's daughter. तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जगदेव ब्रदर की डॉटर हूँ। Yeah, you did a good job. Thank you so much and God bless you. थैंक यू। और मैंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Once again, thank you and may God's name be glorified. और मैं आपका एक और बार धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के नाम की स्तुति। सबको जय मसीह की। सारे ने मैसेज सुन ली होगा, बहुत अच्छा मैसेज था, तो बहुत अच्छा हम लोग को सीखने के लिए मिला है। उसमें से पॉइंट वाइज सारे लिख लिया, वो सोचने में उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए भी कोशिश करना चाहिए था। और स्पेशली धन्यवाद देते हैं सिस्टर रीनू संतोष के लिए और ब्लेसी लॉइस के लिए, और उन लोगों ने प्रभु को वचन हम लोग को सामने रखने के लिए प्रभु ने मदद की उन लोगों को, इसलिए प्रभु के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और हम लोग ये मीटिंग प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम लोग बीच में सर्वजीत को जंडोली से है, उसने हम लोग समाप्ति को प्रार्थना करना। हेलो आंदी, सर्वजीत को प्रार्थना करना। हाँ जी, आवाज आंदी मेरी? जी हाँ जी, आवाज आ रहा है। अच्छा। हे साडे महान सर्वशक्तिमान सच्चे ते जीवित अनुग्रहकारी दयालु कृपालु मेहरबान प्रेमी पिता परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। आपने इस मीटिंग ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ सिस्टर रेनू संतोष ने प्रभु जी जो मैसेज सानू दिता है परमेश्वर पिता आप दी आत्मा दी अगवाई दे विच प्रभु ये वचन प्रभु साडे सबना दे विच प्रभु पहुंचिया, उस लिए असीं आपदा तहे दिल तो धन्नवाद करदे प्रभु। असीं प्रभु जी देखिया कि किवें असीं चाहे किद्दां दियां भी साडे विच परिस्थितियां आण, असीं किवें अपने जीवन नूं बतीत करना प्रभु, जो पॉइंट उन्हां ने दस्से आ परमेश्वर पिता तेरे वचन दे विच असीं अगे किवें वधना प्रभु। इस वचन नूं प्रभु असीं सुनने वाले नहीं मेरे खुदा, हर एक दे जीवन दे विच वचन घर करे और हर एक भैन प्रभु जो भी प्रभु जी इस वचन नूं जिसने भी सुनिया है परमेश्वर पिता, वो इसे तरह प्रभु इस वचन के द्वारा अपनी जिंदगी नूं बतीत कर सके खुदा। इस तरह होने के लिए आप साडी सबना दी मदद और साडी सहायता करना प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं भैन दे लई प्रभु जी, इन्हां दी पूरी फैमिली नूं आप संभाल
ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 60 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੈਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਮਿਨੀ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਰਾਤ ਭਰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਉਸਤਤ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। थैंक यू आपका जय मसीह। जय मसीह दीदी सारिਆਂ ਨੂੰ। और सिस्टर का गवाही सुनने के लिए सारे है, और सिस्टर को ज्यादा है सिस्टर आपके परिवार के लिए और आपके लिए हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे जरूर। और किसी को समझ में नहीं आया और क्वेश्चन से गए तो सिस्टर को मैसेज कर सकते हैं आप लोग और क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमेशा आपके लिए तैयार है ना। और कोई भी पढ़ाई करने फुल मैसेज स्कूल में हम मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you auntie, thank you so much, praise God. Thank you. I know your husband Santosh, but I know. So have his children or they're okay? Yeah, fine, they're doing good. Okay, we are from Perimba or once